Hello, I am Arushi Mishra. I have secured rank 2 in the Indian Forest Services examination, and this was my 4th attempt in the examination. However, due to some constraints in my life, this was my first actual attempt in the Forest Services examination, and this attempt turned out to be good for me. However, before detailing on the journey, how it happened, because when we talk about it, when we talk about any success or anybody who has been selected and who stands up here in front of you guys and tries to tell a story, the story is actually a journey, what people feel and what every aspirant has undergone in his lifetime, in his or her lifetime. So before detailing on the journey, how the journey actually is when you prepare for the government services, I must take a brief opportunity to tell you about my background. And I am a graduate from IIT Roorkee, and I am a 2014 batch pass out. So the story that I might be telling you here is about a journey, and journey of not a person who has suffered hardships in his or her life, because I have seen many stories in the YouTube, or I have heard many success stories of genuinely those good people who have suffered much in their life, and then also they had the courage and determination to do something that good in life that people adore them. But my journey is, however, a different one. I come from a decent, well-to-do family, and I did my graduation from a decent college, and I was offered a decent job. However, when you decide to quit the job, or when you decide to not take the job and start preparing for the services, this is where the choice comes in. Everybody in life makes a choice, and probably this is the choice that comes in when you think that after you have would be that I would have a secure lifestyle, and then also I thought that okay, I should do this. I made a choice at that moment, and that choice was in 2014. And the journey that I would be detailing you is how the choice became the duty, because हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम यहाँ पे आए कि ना आए, हम ये तैयारी स्टार्ट करें या तैयारी ये छोड़ दें, ये हमारी एक चॉइस होती है। हम यहाँ पे चॉइस की बात करते हैं, लेकिन अगर आपने ये चॉइस करी है कि आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और आप तैयारी करेंगे किसी भी चीज़ के लिए इन लाइफ, बी इट एनी मैराथन और एनी गवर्नमेंट सर्विसेज और GMAT, GRE, एनीथिंग इन लाइफ, अगर आपने वो चॉइस ली है तो आपको उसके लिए जो एफर्ट करना पड़ता है वो आपकी चॉइस नहीं होती है, फिर वो आपकी चॉइस कम और आपकी ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है। और यही एक ड्यूटी है जो एक डिफरेंस क्रिएट करती है। तो यही ड्यूटी की हम बात करना चाहेंगे आपसे कि ये ड्यूटी कैसे टर्न आउट होती है, कैसे इंसान कंडीशन होता है फ्रॉम अ माइंड हु इज जस्ट अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज एंड देन हु टर्न्स आउट टू बी एन एस्पिरेंट. And I have jotted down some points so that we become signposted, because ये जर्नी जितनी ज़्यादा लंबी होती है ये बातें उतनी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं. So coming back to the point कि forest services is one of the all India services, and इस services के लिए तैयारी मैंने फाइनल तैयारी तो बाद में करी, मेंस के बाद के 2 महीने जो होते हैं. हाउएवर जो इसकी तैयारी थी, प्रीलिम्स हर बार मैंने कोशिश करी थी कि मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज का क्लियर हो जाए. However, in 2015, I was not able to clear the prelims. In 2016, I cleared the prelims with very good marks. However, I was not able to give forest services because back then forest services का papers सिविल सर्विसेज के मेंस के पहले होता था. प्रीलिम्स और सिविल सर्विसेज के मेंस के पहले हमारा फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर होता था. तो दैट टाइम आई वॉज a young aspirant, and at that time मेरी preparation या मेरी strategization ऐसा था नहीं कि I could have managed this. So after that I gave the 2017 attempt, and in the 2017 attempt also I cleared pre with very good marks. However, due to some familial reasons I was not able to give the forest services mains.
But then came the 2018. 2018 has been a taxing year. 2018 में I again cleared the pre with very good marks, and I had this opportunity to write the Forest Services examination because it was being held after the Civil Services mains. So I had 2 months to prepare for it decently. लेकिन ये last round, the last round what I took is the round that I want to talk about. क्योंकि last round में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि since 2014 I started the preparation and since 2015 I have been giving the prelims. लोगों के लिए prelims clear करना बहुत important होता है और बहुत बड़ी बात होती है अगर आप prelims clear करते हैं तो. However, what happened with me कि हर बार prelims clear हो रहा था, prelims हर बार clear होता था, हर बार mains लिखते थे और हर बार आगे नहीं पहुंच पाते थे. It took a cycle of 1 year, and after 1 year you were left with nothing. And that is when I felt एक attempt होता था, फिर दूसरा attempt होता था, फिर तीसरा attempt होता था. इन सारे attempt में क्या हो रहा था कि आप जिन friends के साथ आए थे वो जा रहे थे, आपके job prospects कम हो रहे थे और आप mentally बहुत ज़्यादा demotivate होते जा रहे थे. ये जो demotivation है इसी की बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये एक जर्नी होती है. कुछ लोग ऐसे लकी होते हैं और कुछ लोग ऐसे मेहनती होते हैं जिनका इनिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है. हाउएवर व्हेन यू सी द रिकॉर्ड्स, द मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम द थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, बिकॉज ये एक प्रोसेस है, ये एक टायरिंग प्रोसेस है जो कि हम करते हैं. कभी कभी मैं अपनी जर्नी में परेशान हो जाती थी कि ये इतना लंबा टाइम क्यों जा रहा है, कभी कभी मन नहीं करता था कि ये करें. हाउएवर अब जब सेलेक्ट हो जाने के बाद ये रियलाइज होता है कि शायद ये एक प्रोसेस था. ये प्रोसेस इस चीज़ का नहीं था कि आप पढ़ाई में कितने अच्छे हो जाते हैं, ये प्रोसेस इस चीज़ का था कि आप कितने मैच्योर हो जाते हैं. और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस तैयारी में. आप कितने ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं ये इम्पोर्टेंट था. और आप कितनी बार फेलियर्स लेके वापस से डबल एफर्ट करके आगे बढ़ पाते हैं. एवरी फेलियर आई टुक इन माई लाइफ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई वाज सैड अबाउट इट फॉर लाइक probably 20-30 days, and then I decided again and again कि let's start working, इस साल हो जाएगा, and with the extra effort, with the zeal to improve. However, the result again came negative. हर बार ऐसा लगता था कि रिजल्ट नेगेटिव आता जा रहा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए या आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए. क्योंकि दैट इज़ वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब हम यहाँ आते हैं ना तो हम सब ग्रेजुएट्स होते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं और तो आपके पास एक चॉइस होती है कि आप अपनी जॉब करें, आप जिस भी लेवल पे जॉब करें, आप अपनी जॉब करें, आप अपनी लाइफ में अपने आगे बढ़ें. However, if you take a choice of doing this preparation, then I realize कि ये ड्यूटी कैसे बनती जाती है. एक अटेम्प्ट के बाद एक अटेम्प्ट बीतता है और आपको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है. इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने सुना है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को. द कॉमन प्रॉब्लम्स माइट बी हम भूल जाते हैं, हमें भूल जाता है, या हम टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं. तो ये जो भूल जाता है, आपने ये सुना कि ये कॉमन प्रॉब्लम है. अगर ये कॉमन प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी बहुत कॉमन होगा. आपको खुद सोच के समझ आएगा. इफ आई एम सेइंग कि दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट पीपल फॉरगेट, so what would be the common solution? Common solution would be revise. Therefore, when you think about your problem, do realize that you are thinking about some common problems. If you have some genuine problems, वो genuine problems आपकी अगर genuine हैं तो आप उसके लिए effort करेंगे और आप इतने capable होते हैं इस level पे graduation के बाद कि आप अपनी problems को cope up कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी common problems ही common है तो आप उसका बहुत कॉमन सोल्यूशन भी डील कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उसको आगे बढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, दैट आई सेड कि आपकी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हमें याद नहीं रहता, तो आप रिवीजन करिए. हमारी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, कोई आता है तो हम चले जाते हैं. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एक कॉमन लोग करते हैं. और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको इसी कॉमन चीज़ से आगे हटना है. ये जो हम कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों की होती है, कॉमन लोगों की होती है, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक सीरियस एस्पिरेंट कहलाते हैं.
हम इससे आगे कैसे बढ़ते हैं। जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम अगर हमारी टाइम वेस्ट है, तो टाइम वेस्ट इज एन ईजी ऑप्शन। आप जिस मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपका 3rd अटेम्प्ट होता है, 4th अटेम्प्ट होता है, या फॉर दैट मैटर इवन 1st एंड 2nd अटेम्प्ट, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। कभी कभी हमें पढ़ाई बहुत अच्छी लग रही होती है और कभी कभी हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही होती है। तो लेकिन ये आपकी चॉइस नहीं है कि आपको अच्छी लग रही है तो आप पढ़ें, आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप मत पढ़ें, आप इंजॉय करें। ये आपकी ड्यूटी है पढ़ना। इफ़ यू हैव थॉट कि आपको ये देना, अगर आपने ये चॉइस करी है कि आपको ये एग्जाम देना है इस अटेम्प्ट, तो आपके पास ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने जो इमोशंस, प्रेजुडाइसेस, मूड स्विंग्स, इन सबको हटा के पढ़ाई करें। जो कॉमन प्रॉब्लम है टाइम वेस्ट की, वो इसलिए कॉमन हो जाती है क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, लोज तो ज़रूर आएंगे। इट इज़ नेवर अ हाई, ऑलवेज हाई तो हो ही नहीं सकता। तो ये जब लोज आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेटर ऑप्शन क्या ढूंढते हैं कि चाय पीने बाहर चले जाते हैं। हम परेशान हैं, हम फ्रेंड्स से मिलने चले जाते हैं। हमें कहीं और जाने का मन नहीं होता, हम यूट्यूब पे टाइम पास कर देते हैं। हमें और कुछ नहीं करना होता तो हम लोगों से बहुत सारी बातें कर लेते हैं। लेकिन ये रास्ता आसान होता है। आप परेशान हैं एंड यू सीक आउट टू द ईजियर सॉल्यूशंस। दिस इज व्हाट कॉमन पीपल डू एंड दिस इज व्हाट यू एस्पिरेंट्स शुड नॉट डू। आप ही की तो फाइट है। अगर आप 1 साल 1.5 साल इस एग्जाम में बहुत मेहनत से देते हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो फाइट तो आपकी है, तो आपको करनी पड़ेगी लाइफ में। ये जो कॉमन चीज करना है कि अब मैं परेशान हूं तो लेट्स टेक अ ब्रेक, और ऐसा ब्रेक जिससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो वो ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको फाइट करना है, क्योंकि ये लड़ाई जैसे जैसे साल बीतता जाता है, ये लड़ाई आपकी अपने सीट के बगल वाले से नहीं होती है, ये आपकी लड़ाई अपने लाइब्रेरी मेट से नहीं होती है, आपकी लड़ाई आपके फ्लैटमेट से नहीं होती है, आपको दिखाना अपने पेरेंट्स को नहीं होता है, अपने आप को दिखाना अपने फ्रेंड्स को नहीं होता है, आपको दिखाना खुद को होता है। आपकी जो लड़ाई है वो भी हर दिन आपकी खुद की होती है, आपकी खुद से होती है, एंड यू हैव टू विन ओवर यू। तो जो हम ये तैयारी कर रहे होते हैं, इसमें हमें जब टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्टिव टाइम वेस्ट करना चाहिए। आप सॉलिड पढ़ाई करिए। यू व्हेनेवर यू आर सिटिंग फॉर लाइक 3 hours, मेक श्योर दैट एवरी सिंगल मिनट ऑफ दैट 3 hour काउंट्स। आप उसकी अच्छे से पढ़ाई करें, तो उसके बाद व्हेन यू टेक अ ब्रेक, यू डिजर्व दैट ब्रेक एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट। उस ब्रेक में आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, आप उस ब्रेक में खुश होते हैं कि अब मैं रिजुविनेट हूँ। क्योंकि ब्रेक्स जरूरी हैं, टाइम वेस्ट जरूरी है, लेकिन टाइम वेस्ट प्लान्ड होना चाहिए, टाइम वेस्ट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अदरवाइज उस टाइम वेस्ट का क्या मतलब हुआ कि हम उसमें भी परेशान हैं, हम जब बैठे हैं तो भी हम टाइम वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जो प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड इवन बहुत सारे लोगों ने ये बता रखा है कि कैसे करना है। क्यों मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि दिमाग से कैसे इससे लड़ना है, उन कॉमन प्रॉब्लम्स को हमको कैसे फाइट करना है। जब हम एज एन एस्पिरेंट हर दिन उठते हैं और हमारे घर से कॉल आती है या हमें कोई पूछता है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, मेक श्योर यू थिंक, अपने मन में आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या आप उसको ऑनेस्टली कर रहे हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि जब हम बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं, हमें कहा जाता है कि 1 साल काम कर लो, यू स्टडी फॉर 2 years एंड यू वुड गेट आउट विद फ्लाइंग कलर्स। दिस इज अ कॉमन थिंग, हर इंसान कहता है और ये बात सच भी होती है। हाउएवर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये हम कर भी रहे हैं, हम बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, फिर भी ये चीज़ मटीरियलाइज नहीं हो रही होती। We are not able to get the desired result in the desired time, even if we are putting the desired amount of effort. And this is where perseverance comes in. आप इस मोमेंट पे छोड़ भी सकते हैं, like I said, you have the choice of leaving. However, if you do not take this option, आप जाते नहीं हैं, आपके सक्सीड होने के चांसेस भी तभी होते हैं जब अगर आप उस लड़ाई में होंगे। अगर आप उस रेस को छोड़ के चले जाते हैं तो आपके सक्सीड होने के चांसेस तो खत्म हो गए। लेकिन ये चॉइस आपको लेनी पड़ेगी, ये चॉइस और कोई ले नहीं सकता कि दिस इज इट, मुझे यहाँ तक करना था, मैंने ये किया एंड अब मैं कुछ और बेटर करूँगा लाइफ में। तो अगर आप ये चॉइस करते हैं, आपको पढ़ना है, तो मेक इट अ ड्यूटी, शो योर परसिवरेंस ओवर इट कि आई मेड अ चॉइस टू राइट एन अटेम्प्ट अगेन एंड आई हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स
एंड यही एक छोटा सा चेंज होता है लाइफ में. दिस टाइम व्हेन आई गेव माई एग्जामिनेशन, आई वॉज नॉट इन अ प्रिपरेशन मोड आफ्टर सिविल्स. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि लेट्स डू अनदर राउंड. However, this was the round. I told myself कि you have to make a choice, and I did make a choice at that moment कि मुझे ये एग्जाम देना है, और जिस मोमेंट पे देना है ये आपने सोच लिया है, तो उसके बाद का नेक्स्ट सेकंड इस बात पे वेस्ट नहीं होना चाहिए कि मुझे देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था. ये डिसीजन लेने में टाइम मत वेस्ट करिए कि आपने 90% एफर्ट आप इसमें लगा देंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक नहीं लेना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना. आप सिर्फ इसमें 10% लगाइए. आपने जो डिसीजन लिया है 90% एफर्ट यू पुट टू मेक दैट डिसीजन राइट. एंड इफ यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर वन मोर राउंड, देन गिव योर 99.9%. एंड आई वुड सजेस्ट 100% एफर्ट दीजिए, बिकॉज आई एम रियली सॉरी, 90% एफर्ट कोई एफर्ट ही नहीं होता है लाइफ में, क्योंकि 90% एफर्ट से तो आप फेल हो ही रहे हैं. जो 100% एफर्ट होता है उससे आपको पास होने की कोई गारंटी नहीं दे रहा होता, लेकिन आप उस रेस में आ जाते हैं जहां पे आप जीत सकते हैं. तो उस रेस में आना बहुत ज़रूरी है. तो आप 100% एफर्ट तो दीजिए, एटलीस्ट रेस में तो भागिए. अगर आपने चॉइस ये करी है कि आपको भागना है, 90% एफर्ट मत करिए. 90% एफर्ट से आप फेल हो रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप 10% एफर्ट करिए, 0% एफर्ट करिए, और आप प्राइम ऑफ यूथ में हैं, आप उसको एंजॉय करिए, आप उसमें बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स ढूंढिए. ये है. तो यहाँ पे जो ये दिमाग से फाइट चल रही थी, ये हर इंसान की चलती है, आपकी भी चल रही होगी, सबकी चलती है. इस फाइट में क्या हुआ, जब आई केम टू एम्पावर IAS, एंड इस फाइट में आई मेट उज्जवल सर. तो इस फाइट में उनका रोल एज अ टीचर से ज़्यादा एज अ मेंटर रहा, कि उन्होंने मुझे ये फाइट करना सिखाया दिमाग से कि हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्यों इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, कि हमारे लिए हमारा एटीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ये कंट्रीब्यूशन जो किसी का होता है उसी की इंपॉर्टेंस लाइफ में होती है. और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी इस इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्डअप करने में हेल्प कर रहे होंगे. ये सब आपके पिलर्स होते हैं, पिलर्स ऑफ सक्सेस होते हैं. इन पिलर्स को आप संभाल के रखिए. अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो आप अच्छे से पढ़िए, कोई आपको गाइड कर रहा है तो आप उनकी बातें अच्छे से समझिए. और इन सब में आपका क्योंकि अपना बहुत एफर्ट होने वाला है. मुझे आपसे ये कहना है कि हम बाकी तो सब चीज़ें स्ट्रैटेजी बाहर ऑलरेडी अपलोडेड है. हाउएवर अगर हम प्री की बात करें, क्योंकि प्री का इसका कट ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज का 10 to 15 मार्क्स हायर जाता है, तो इस 10 to 15 हायर मार्क्स के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप रिविजन करिए. हम 2 से 3 रिवीजन करके जाएंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि जब हम क्वेश्चन पेपर में बैठेंगे, क्वेश्चन हॉल रूम में बैठेंगे, जब हम देखेंगे तो वी वुड गेट टू नो कि उन 4 ऑप्शन में हम एलिमिनेट कैसे कर पा रहे हैं, हमारा सही हो रहा है या नहीं. मतलब हम फिल इन द ब्लैंक्स करने नहीं आए हैं यहाँ पे कि हमें क्वेश्चन देखते ही आ जाए. हाउएवर हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इन 4 ऑप्शन में, वो क्या हम समझ पा रहे हैं, हम इसमें एलिमिनेट कर पा रहे हैं. तो अगर आप उसको कर ले जाते हैं तो आपके प्रीलिम्स में नंबर आ जाते हैं. तो आप रिवीजन पे बहुत फोकस करिए. आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपने जहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ा है, आप जहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मेक श्योर डू नॉट गो फॉर लर्निंग रीडिंग मोर एंड मोर. मेक श्योर दैट यू रिवाइज अगेन रिवाइज, एंड बाय द टाइम यू आर गोइंग फॉर प्रीलिम्स एटलीस्ट 3 रिविजन्स आपके हो जाने चाहिए. देन यू गेट टू दैट कट ऑफ जिससे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज क्लियर होगा, और उसके आगे की जर्नी फिर आगे कभी बात कर सकते हैं. ये मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि आप जब एक उसमें आते हैं, प्रिपरेशन मोड में आते हैं, आपको स्टेट ऑफ वॉर में रहना चाहिए हमेशा. हम तैयारी क्यों करते हैं, हमारे यहाँ डिफेंस एलोकेशन, बजट एलोकेशन होता है, हमारे यहाँ जो है वीसी की डिफेंस में बजट एलोकेशन हो रहा है, हमारी आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग कर रही होती हैं लगातार. और गिवन द डिप्लोमेटिक सिनेरियो एंड द मल्टीलेटरल वर्ल्ड दैट वी हैव, it is very highly unlikely that we would be facing a war. Then why are we in the state of war? But we are in the state of war because हमें उस तैयारी के साथ तो रहना पड़ेगा कि अगर कल कुछ होता है तो हम उसके लिए रेडी हों. हम ये नहीं कह सकते कि प्रीलिम्स आ रहा है तो आप 2 महीने में तैयारी करते हैं. आपको उस स्टेट ऑफ वॉर में रहना पड़ेगा पिछले 1 साल से.
क्योंकि 1 या 2 दिन का या 1 या 2 महीने का ये गेम नहीं होता है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको स्टेट ऑफ वॉर पे हर दिन रहना पड़ेगा, हर घंटे रहना पड़ेगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो जब आप ये कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो बाकी चीज़ें आपको पता हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि 3 पिलर्स जो आपके ज़रूरी हैं वो ये कि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप उसको उससे मत कतराइए। सुबह से उठ के रात तक आप जितने टाइम यू आर अवेक, मेक श्योर दैट यू मेक ईच एंड एवरी मिनट काउंट। देन इज द रिविजन पार्ट। रिविजन के बिना आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। और ये मैं अकेले नहीं कह रही हूँ, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं मैंने भी सुना है और उन्हीं से सीखा है और उन्हीं से अपनी लाइफ में अप्लाई किया है कि रिविजन कितना ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड, जितने भी लोग यहाँ पे तैयारी करने आए हैं, 99% ऑफ द पीपल हैव दैट एप्टीट्यूड। वो इतने ब्रेन के लेवल के होते हैं कि वो ये अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन यहीं पे हमारा एटीट्यूड कम्स इन, क्योंकि ये तैयारी 1 साल की 2 महीने की ऐसी नहीं है। इस तैयारी में अगर आपको समय लगता है और अगर आप परसिवरेंस शो करते हैं, ये आपका एटीट्यूड होगा कि मैं यहाँ पे तब भी रुकूंगा या रुकूंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आप रेस में रहेंगे। और अगर आप रेस में रहेंगे तो ही आप रेस में जीत सकते हैं। तो इसके लिए आप एफर्ट करिए। और अगर यहाँ पे वापस मिलना हुआ तो हम वापस से आपको गाइड करेंगे। और इन द मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई एम सिटिंग आउटसाइड और हम इस बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू।